Good morning, Umar. How are Good you? morning. Happy Sunday morning from Chattanooga, Tennessee. And how's the weather there in Lexington, Kentucky? Well, happy morning from Lexington, Kentucky. The weather is cloudy, a Yeah. little sad, but I like it. Uh, Yeah. Having lived in all the places that I have, I forget about the weather. You just deal with it. Just make yep. the weather what you want it to be. Anyhow, this is an introductory podcast recording. और आइडिया ये है कि दो दोस्त मिले और खैर मिले इन पर्सन तो काफ़ी अर्सा हो गया बट टू गेट टुगेदर एंड talk about life and talk about interesting things that others may be interested in talking about. Memories from medical school, memories from outside medical school. And, you know, both of us met back in 1982 and we were friends all through medical school and then afterwards came to the US. So I'll let you give your introduction. My name is Umar Murad. I think Umar is how we used to call, unlike the last name in Pakistan. So known by Umar to early friends, to college friends, and I would like to give a little intro, not just about my name, but actually, or who I am, but also where I came from, where I sprouted from. So, Bilkul. Yeah. हाँ, ताकि Sure. कुछ कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं होता, वो आपको जानते हैं सिंपली कॉलेज से और बियॉन्ड, उनको नहीं पता होता आप उससे पहले कि जो है वो Yeah. कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ से, तो शुरू कहाँ दे से हुए? कांट प्लेस, हाँ, कि आप जो करते थे, अरे हाँ, वो तो हमने देखा था, उमर भाई तो ये कर रहे थे, वो तो यूं थे, मतलब वो आए कहाँ से थे, क्यों कर रहे थे तो ये वाली बात है। तो Yeah. आई वाज तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ पहले कि आई वाज बोर्न टू टू यूनिवर्सिटी टीचर्स इन इन कराची, पाकिस्तान, कराची यूनिवर्सिटी एक्चुअली। तो अपब्रिंगिंग शुरू से कराची यूनिवर्सिटी में हुई और चूंकि मेरे पेरेंट्स दोनों के दोनों बड़े एक्चुअली जो है 60s के प्रोग्रेसिव इनलाइटमेंट से मेस्मराइज्ड अपनी इमिग्रेशन कनाडा से छोड़ के पाकिस्तान आए थे पाकिस्तान को सर्व करने के लिए, तो उन they were mavericks basically in the university. They wanted to bring something good, something positive, something progressive, but they never knew what they're entering into is a Pakistan of dictatorship and religiosity. So they actually, being professors of religion, they actually fought extreme religiosity, not Yeah. just on a state level or university level, but within their family, क्योंकि Yeah. बहुत ज़्यादा over religious हो गई थी. Yeah. So and actually my father was probably amongst his brothers the most qualified to speak on Islam because he was a professor of Islamic history. Others were just they adopted Islam and started reading the holy book and they Yeah. became champions of it. But But anyway, this is where I came from. And then the whole, you must have remembered in college, the anti-Zia movement. During the time when we were in college, it was Zia's rule. So this is where my political activism and about progressive ideals, about having a fair world, that's where they sprouted from. So yeah, तो कितनी वो बातें याद आती हैं. But let me ask this: your parents were where in Canada? They went to they university went to there. actually, they went to Montreal. And they got a scholarship in those times. It was called a Ford Foundation scholarship, which I always taunt them. And probably they never knew at that time that there was a time when actually CIA was sponsoring people from the Muslim world to come in and get educated into certain brand of Islam that is anti-socialist, anti-communist. Yeah. But I think they were probably one of the few who went there, took advantage of the scholarship, and came back the opposite. McGill, McGill University. McGill University, Montreal. Yeah, yeah. मुझे उस दिन याद आया जब ये पॉडकास्ट की हम शुरुआत कर रहे थे. मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं रही है 40 साल के बाद. बट पॉडकास्ट करोगे तो अच्छी हो जाएगी. नए अल्फाज सीखेंगे. अब मैं भी वैसे कहता हूँ उर्दू जो है वो उर्दू और इंग्लिश बन गई है. अच्छा उसको मैं उर्दुलिश कहता हूँ.
उर्दूलिश अच्छा। उर्दूश कभी सुनो टीवी को, ये ना आधी हुँ, अंग्रेजी और आम आधी आदमी। उर्दू। खैर वो एक प्रोग्राम पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, हुँ, लेट 1960s में था, सच कप, जब पाकिस्तान का बिल्कुल, ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल टीवी याद है। है। तो उसमें वो शोएब हाशमी अभी रिसेंटली बेचारे वो फौत हो गए। हाँ, बट वो लोग बहुत अपने जमाने के यू नो एडवांस्ड प्लेयर्स थे। हुँ, स्किट की फॉर्म में जो सैटायर और सोशल कमेंटरी वो उस वक्त करते थे, हुँ, मुझे तो खैर उस वक्त समझ नहीं आती थी, अच्छा था, हुँ, कॉमेडी थी, लेकिन अब वो मैं बाद में जाकर देखता हूँ तो अंदाजा होता है कि these people were actually educating us। तो उसी से पे थोड़ा वो लिंक निकला कि जब तुमने पॉडकास्ट के नाम का आइडिया दिया, सच्ची बात, हुँ। तो सच्ची बात से मुझे फिर सच कप याद आई। फिर मैंने कहा यार, हो सकता है उस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस करें। तो इसमें कभी हो सकता है कि क्लिप भी डाल दें, सच कप, ये तो अब वो ओपन स्पेस में हाँ, है तो उसकी तो कोई वो लेनी नहीं पड़ेगी रॉयल्टी। हाँ। और खैर। एजुकेशन तो साथ-साथ मेरा ख़्याल है इसकी यूँ भी होती रहेगी कि ज़ाहिर है दूसरों के एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो चाहे आपके वालिदैन के हों, चाहे दोस्तों के या हों, चाहे इनकलाबियों के हों, वो आपके लिए हमेशा एक कहते हैं एजुकेशन होती है। तो या और ये लोग तो डेफ़िनेटली 60s के जो थे शोएब या हाशमी की तो वाइफ़ जो है वो फैज़ अहमद फैज़ की बेटी थी। या या So they were Samina ji. very educated people, and they Yeah. wanted to again they wanted to bring a change which was more progressive. Mm, Yeah. Breaking the norm and the norm. yeah, the iconoclasts, break the हाँ, mindset. So, chief, और अगेन yeah, सच को जो है ना, जो ज़ाहिर है अगर आप माशरे को क्लोज़ कर देते हैं, बॉक्स uh, कर देते हैं, तो uh, सच को छुपा के नीचे रखना पड़ता है yeah, और ऊपर एक फ़साद क्रिएट करना पड़ता है ऑफ बीइंग नाइस, बीइंग गुड, एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स सेट बाय व्हाटएवर डॉगमा yeah, वी हैड। लेकिन उसके अंदर बेचारा सच जो है, वो अंदर कारपेट के नीचे जो है वो पिस रहा होता है। लेकिन हम जिस उसमें आए हैं, यानी सोचो ना हम दोनों एक-दूसरे को जब आज से yeah, बी मैं तो सोचा भी नहीं था कभी हम जो है एक-दूसरे को जो है वो लड़कों की तरह देखा था। अब ये पता ही नहीं था कि yeah, इतने साल बाद बैठ के इस तरह भी yeah. देखेंगे। लेकिन ज़ाहिर है 62 years ना almost. तुमने Yeah. ना मैंने, दोनों ने अपने बाल जो हैं वो जो खाली सफ़ेद नहीं किए हैं। बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, हम दोनों के बड़े मुख्तलिफ किस्म के जो हैं। Yeah, तो और yeah, ज़ाहिर है हमारे दूसरे दोस्तों के भी जिनसे हम बात करेंगे, तो yeah, उससे मेरा ख़्याल है इवन यंग डॉक्टर्स के लिए जिनको हम चाहें तो उसमें बाद में शामिल कर सकते हैं कि उनको yeah, भी इससे कितना फ़ायदा होगा कि अमेरिकन yeah, मेडिसिन के बारे में, अमेरिकन सोसाइटी के बारे में, अमेरिकन yeah. कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में। लेकिन ये कि हाँ, इट विल अब बी एन इंटरेस्टिंग एंड अब एंडेवर। तो अब तो देखते हैं क्या अब तो होता है। जमाना इतना चेंज हो गया है, इतनी बातें जहन में आती है जब तुम बोल हाँ, रहे हो तो कुछ आइडिया नहीं रहता है कि भाई इसकी बात करें, इसकी बात करें। सो हुँ। खैर वो लेकिन सोशल इंट्रोड्यूस। मीडिया की वजह से अब बच्चे वो बोलते हैं जो उनके ज़हन में है। और वो इसी वजह से हमारे यहाँ के जो छुपे हुए सच हैं वो निकल के आते हैं। इसीलिए मेरा ख़्याल है कि इस किस्म का जो ये जो मीडियम है हमारा बात करने का जो है ना, इट्स लाइक अ ड्राइंग रूम टॉक। हम ड्राइंग बिल्कुल। रूम को जो है निकाल के जो है वो सबके सामने ले आएँ। वरना पहले हमारे चंद दोस्त आते थे, बैठते थे, हम गप लड़ाते थे। तो वो चीज़ सिर्फ़ हम तक रहती थी। और अब ये वो चीज़ जो वहीं है खत्म हो हाँ, गई, उसका कोई हाँ, रिकॉर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं। वही है ना। अब हाँ, वो यही अंदाजा हुआ कि बड़े इतने ग्रुप है व्हाट्सएप पे, फेसबुक में, हर हाँ। चीज के। मेरे बोर्डिंग स्कूल का ग्रुप है, हुँ, सिंध मेडिकल का होगा या नहीं होगा, हाँ, हर कोई अपने अपने एक जोन में है, जिसके जो फ्रेंड है उनसे वो शेयर करते हैं, और वो बात वहीं की वहीं रह जाती है, कोई एक हाँ, यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, तो इससे मुझे ख्याल आया कि भाई हाँ। कभी सोचा भी नहीं है पॉडकास्ट पर, बट अभी इस तरह से लग रहा है कि बस मैं तुम्हारे घर में ही बैठा हूँ। तो हुँ। दिस इज गुड। तो खैर वो इंट्रोडक्शन हो रही थी, तो यूनिवर्सिटी में आ गए, और यहाँ फिर तुम्हारी जो एजुकेशन हुई, फिर वहाँ से मेडिकल स्कूल। और कुछ ऐड करना है उसमें? पहले तुम तो बताओ तुम कहाँ से आए थे? फिर उसके बाद फिर मैं ऐड करूँ। हाँ हाँ, हाँ। तो ये तो शुरू होती है ना बात, तो खैर ऑब्वियस थिंग, लास्ट नेम जहानिया। जहानिया जो है वो एक गांव है मुल्तान से तकरीबन 28 मील, आई थिंक इट्स ईस्ट ऑफ मुल्तान।
तो मेरे जो फादर के ग्रैंडफादर, वो उनकी फैमिली ये सारे जो अब इंडियन पंजाब है या जालंधर और लुधियाना और इस इलाके से. सो माय ग्रेट great grandfather, he used to work in the British Railway in North Africa during World War One. So as a result of his service to the king, they were granted land. उसको कहते थे घोड़ी चाल मुरब्बा. So that you हम्म got on your horse in the morning, and all the land that you covered by the end of the day, that was granted to you. So ये उनको जो है मिला था जहानिया में. So वहाँ से वो family उधर move हुई. Then my grandfather was born in South Court. उस ज़माने में, और फिर वो he was very well educated in those days, and he was very active in politics and Muslim League and anti-British agitation. In fact, there's a story that he had a friend he took to the railroad station, and when the friend got on, he was kind of running late, so he got on the last bogie. Well, unfortunately, that bogie was British soldiers, so they started hitting him. And my grandfather couldn't stand it, so he got in there and he started slapping the British soldiers. So he got arrested. And at that time, he was sentenced to death by hanging. हम्म But वो बाहर वो commute हो गया sentence. But he was, तुम क्या रहते हैं rebel spirit, हम्म it's on this side also. So anyways, dad was born there in Jahania. He grew up in a farming household. But Dada jo hai, he was the one outside and working in politics and government, and he had all kinds of contacts with the prime ministers at that time, Liaquat Ali Khan, et cetera, et cetera. So then he started a business. Dad and everybody moved to Karachi, and they were doing very well. Karachi में business था जहानिया सन्स के नाम से. फिर उसके बाद जो है everybody sort of went their way. Dada ने he sold the business. They bought land in Mubarakpur, close to Ghotki, Sindh. So dad didn't want to do this, so he just came back to Karachi and started a business, and that's where I was. I went to boarding school in Murray, Lawrence College. वहाँ से जब वापस आया एडिटर के बाद तो एसएमसी सिंध मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ. उससे पहले कुछ 6 महीने के लिए मैं इधर था, यूएस में था. आफ्टर बोर्डिंग स्कूल जब मैं ख़त्म करके आया, तो फिर जब जब मेडिकल स्कूल ख़त्म हुआ तो फिर उसी में सैर करने आया था मैं और मेरी बहन. उसी सैर के दौरान ये आइडिया हुआ कि भाई सर्जरी की जो रेजिडेंसी है वो यूएस में मच बेटर. मेरा तो ख्याल था कि शायद इंग्लैंड में एफआरसीएस करेंगे, लेकिन वो खैर अब तो पुरानी बात है. हम्म हम्म, लेकिन बड़ा ये 2 बातें मुझे तुम्हारी हिस्ट्री में आज पता लगी। एक तो ये कि तुम्हारा कनेक्शन जो है वो दादा के बाद से जो है जालंधर से था। मेरे दादा खुद जालंधर से थे। हाँ. हाँ, मेरे दादा जालंधर से थे और दादी जो है वो भोपाल से थीं। तो हाँ, एक्चुअली वो आधा ख़ानदान में पंजाबी खून है और आधा जो है वो यूपी का है। तो यूपी एक तो का. ये चीज़ और दूसरी आई नेवर न्यू कि योर डैड हैड अ जहानी एंड शॉप इन कराची। आई डिडन्ट नो दैट। बिजनेस बिज़नेस हाँ, हाँ, जहाँ. बिज़नेस मुझे नहीं पता था। वो दादा ने शुरू किया था, और he हाँ, because of his connections, हुँ, he got contract for clearing and forwarding ships that came to हाँ, Karachi port. हाँ, So हुँ, that was a very lucrative business. हुँ, माँ बताती है कि उस वक्त इतने पैसे होते थे कि वो बक्सों में बंद करके होता था कि भाई कहाँ रखें. सही बात है। मैं तो उस वक़्त खैर मेरी तुम्हारी दोस्ती नहीं थी वरना हम कुछ बक्से जो हैं वो रख लेते हैं, संभाल के रख ले. बट मेरे मेरे हुँ, फादर की जब शादी हुई है, हुँ, उसकी तस्वीरें हैं, मैं कभी शेयर हुँ, करूंगा इस पे. हाँ, इट्स द हुज हु. अब ये जैसे हाँ, आप अगर फर्ज करें आपकी शादी हो, और या आपके बच्चों की शादी हो, और आधा व्हाइट हाउस जो है आपके घर आया हुआ है हुँ, शादी पे,
That's the scene. I mean, बेगम नुसरत भुट्टो और ये हुँ, सारे मेरी चची और अम्मी इनकी सारों की तस्वीरें हैं इन लोगों के साथ ये हुँ, शादियों पे ये सब किया। हुँ, सो उस वक्त जो है शेवी बेल एयर हुँ, जबरदस्त एक गाड़ी 19 आई थिंक 56 में नया मॉडल आया हुँ, था उस वक्त। तो दादा के पास 1958 या 59 शेवी बेल एयर ब्रांड न्यू। जब हुँ, डैडी की शादी हुई है तो इनकी बारात उस शेवी बेल एयर में गई। So, हुँ, हुँ, that's like the Rolls Royce of that era, you know? हुँ। So, लेकिन क्या ब्यूटीफुल कॉन्ट्रडिक्शन है कि mm, सोचना वो तुमने जो बताया था कि ब्रिटिश से ज़मीन मिली थी घोड़ा मुरब्बा करके और yeah, उसके बाद तुम्हारे दादा जिनसे एक्चुअली मेरा अगर इंटेलेक्चुअल कनेक्शन तुम्हारे घर में किसी से बना है तुम्हारे दादा से बना था। yeah. आई यूज्ड टू से इफ यू रिमेंबर आई यूज्ड टू सिट डाउन विद हिम एंड वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस क्योंकि वो एक्चुअली कन्फाइंड रहे हैं रावलपिंडी साजिश केस के अंदर जब फैज़ अहमद फैज़ But और दूसरे लोग जेल थे में तो थे, उनके साथ थे वो जेल में। जेल में एक्चुअली बिल्कुल, और तुम्हारे अब्बू जब खाना लेके जाते थे, तो बिल्कुल। उस वक़्त वो फैज़ अहमद फैज़ और दूसरे जो ज़हीर और ये लोग भी जो राव साथी उनके थे वो उनके साथ शेयर करते थे। हाँ और मुझे और वो जो थे दादा तुम्हारे वो मुस्लिम लीग के अंदर एक्चुअली वन ऑफ द फ्यू yeah, पीपल हू वांटेड मुस्लिम लीग टू गो लेफ्ट। yeah. ओ सो बिल्कुल वो तो आजकल हाँ, भी वो तुम्हें मैंने पता नहीं वो दिखाई है कि नहीं। मैंने बहुत अरसे से डैडी को जब मैं कहता था कि आपकी ये सारी तस्वीरें सारे खत क्योंकि हाँ। जब दादा जेल में थे सो डैड वाज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग हुँ, ट्रैक और सारी चीजें ना। हुँ, तो ही सेव्ड ऑल ऑफ देम वो एक बक्से में वो सब दिखाते होते थे पर तो मैंने उनकी बड़ी जिद की आज से कोई 10-15 साल पहले कि भाई ये जो है सब इकट्ठा कर लें। सो ही एक्चुअली पब्लिश्ड दैट। आई डोंट नो इफ यू हुँ। नो। आई डोंट नो दैट मैं तुमसे या पूछता रहता था। आई वांट टू सी दैट अगर तुम मौका मिले ना तो मुझे हाँ बताना हाउ कैन आई गेट होल्ड ऑफ दैट? हाँ वो बुक है मैं हुँ, देखता हूँ डैडी के पास शायद हाँ, और कॉपीज होंगी। सो आधी इंग्लिश में है आधी उर्दू में और सारी तस्वीरें सारे खत। हुँ, तुम्हें तो बहुत मजा आएगा वो देख के मज़ा आए। हाँ हुँ, और इंटरप्रेट करना। इट्स लाइक द हुज हू ऑफ दैट हाँ। एनीवेज। मुझे सो तुम्हारी उर्दू इंग्लिश का जो वर्ड था उसके बाद क्या कहा था तुमने उसका उर्दलिश कॉम्बिनेशन हाँ? उर्दलिश उर्दूलिश अच्छा मुझे उर्दू की कदर एक्चुअली यहाँ आके आई क्योंकि हाँ मुझे इंग्लिश ये कहते हैं ना उसकी वोकैबुलरी के कंस्ट्रेंट्स जो हैं अब या तो वो मैंने शायद इतनी इंग्लिश पढ़ी नहीं या इतने नॉवेल्स बाबा कहते रहते थे फिक्शन पढ़ो लेकिन मैं पढ़ता नहीं था फिक्शन हाँ जो है लेकिन उर्दू की जो वो है पावर उसके अंदर हाँ वर्ड्स की जो है उसमें हाँ डिफरेंट वर्ड्स उसकी जो वोकैबुलरी है वो इतनी जबरदस्त है कि उससे आपके एक्सप्रेशंस जो हैं जैसे मैं हाँ कहता हूँ कभी वर्ड वर्ड मुरव्वत जो है उसका इंग्लिश में तर्जुमा करना या मुरव्वत है ही नहीं इंग्लिश हम्म कल्चर में, लेकिन वो है तो नहीं, वो कुछ या वर्ड्स का तर्जुमा जो है। अब तो मुझे जो उर्दू है पावरफुल लैंग्वेज। मुझे इन लैंग्वेज की जो ओरिजिन्स और इसका बड़ा इंटरेस्ट है कई किताबें हैं मेरे पास जो मैं पढ़ता हूँ कि भाई हाँ, लोग ने कैसे बोलना शुरू किया ज़बानें कहा। सो इंग्लिश जो इट्स अ डिसेंडेंट ऑफ द जर्मैनिक लैंग्वेज सो हाँ, पहले वहाँ रोमन्स थे उससे पहले जो है द वाइकिंग्स फ्रॉम द जर्मन एरिया सो द इंग्लिश हैज़ अ जर्मैनिक रूट as opposed to the Romance languages, which is, हुँ, Latin. मतलब मार-धाड़ की लैंग्वेज थी अगर जर्मैनिक स्टाइल Yeah, exactly. Yeah, हाँ, as opposed to the Romance languages from, Greece and Latin and हुँ, Italian and French and Spanish and all of that. But उर्दू का ये है ना कि कितने एम्पायर्स आए इंडिया की तरफ या तो उस हुँ, वक्त तो भारत इसको कहते थे। So, all of the Mughals and all the Mongols eventually, and all the Afghan tribes, सारे जो आए English, French, सबने contribute किया इस zaman में, हुँ, because the armies were so expensive and from different areas, they हुँ, needed. So उसकी input जो हुई है कई ज़बानों से हुई है। बिल्कुल। अभी एक वो है ऑडियो बुक है जब भी मैं हम लोग जाते हैं मिशिगन या शिकागो ड्राइव करते तो मैं ऑडियो बुक डाउनलोड करता हूँ तो हर ट्रिप पे एक नई ऑडियो बुक है। तो रिसेंटली मैंने एक बुक देखी उसका नाम है एटिमोलॉजिकॉन आई कैन शेयर दैट विद यू बट हुँ, इट्स अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ वर्ड्स सो अभी वो वर्ड्स हाँ उर्दू की बात हो रही थी
पतलून। हाँ, तो ये पतलून जो है उर्दू में वो पैंट का नाम, हम्म, राइट, हम्म, पंतलून। तो जब आप उसकी हिस्ट्री देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ल pantalon हम्म, from the French origin, but khair, this goes the war same. But हम्म, in relation to what you said, Urdu has a very wide uh, हम्म, base contribution from many cultures and many languages. हम्म। So कहाँ से और एक बात वर्ड कहाँ इसी नहीं? हवाले से मैं बोलूँगा, तुमने पतलून का बोला तो मैं बोलूँगा लूट। मैं पढ़ा था Eh, एक्चुअली हिस्ट्री जो ब्रिटिश इंडिया की और ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ये वर्ड लूट hmm, जो है ये आया ही जो है उर्दू से इंग्लिश में गया लूट जो है। uh, और शायद इन्होंने लूट-मार की भी वहीं, तो इसीलिए वो लूटमार उनके सबने की है, ये तो लूट-मार सबने सब की है। सबने हाँ, यहाँ हो ये गए या वहाँ हो गए, सारे ही ये बात लूटमार सही है। करते, या सबने की है। क्या क्या बातें हो सकती है। और हुँ, आइडिया ये है कि as we go along, we will invite friends, guests, and it could be anybody. मैंने हाँ, अपने दोस्तों में और फैमिली में जिक्र किया है। सो जैसा तो पहले कह रहे थे ना, लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं और कह नहीं सकते, सही और बात। पाकिस्तान में खास तौर पे। हुँ, तो अभी मेरे मामू हैं, तुम मिले हुए सबसे। हुँ, हुँ, बड़े मामू जो हैं जावेद, वो उधर दुबई में हैं। तो उनसे व्हाट्सएप पे कभी गपशप रहती है। तो अ, ज़ाहिर है वो दुबई में रहते हैं, तो व्हाट यू हियर द न्यूज़ एंड एवरीथिंग इज द दैट फ्लेवर सो वो ऐसे ही जिक्र हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं व्हाट्सएप पे लाइव बात नहीं कर सकता तुमसे। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहते हैं हमारे वो सेंसरशिप है, और इट्स ब्लॉक्ड, हुँ, द हाँ, वॉइस वॉइस हुँ, ओवर व्हाट्सएप इज ब्लॉक्ड। मुझे हुँ, हैरानी हुई कि अच्छा ऐसे भी होता है। तो हुँ, उनको वीपीएन लेना पड़ता है वहां पर अगर हुँ, किसी ने करना हो। बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई, यूएस फर्स्ट अमेंडमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, you आपने जो कहना है आप कह ले, within means, if you're not hurting anybody or breaking any other law, you can say whatever you want. So हुँ, that was a big thing, yeah, for me to say हम लोग तो ऐसे ही WhatsApp हाँ, पे जिसको मर्जी फोन करो। So the freedom of speech is first enough. So that's why we're here, freedom of बिल्कुल। speech. So that's what I want to offer. अब ये है कि पाकिस्तान में जिस लोग जो हैं वो कतराएंगे कि भाई हमारा नाम ना लो या हमारी शक्ल ना दिखाओ, तो we gonna give them a platform. So हाँ, और दूसरे बाज़ दफ़ा उसका भी एहतराम करना पड़ेगा क्योंकि स्टेट स्टेट mm, रेट्रिब्यूशन या स्टेट yeah, की तरफ से जो होता uh, है ख़ास तौर पे जो लोग इस पोज़ीशन में हैं कि अगर वो बोलें तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे लोगों को, उनके ऊपर स्टेट जो है वो बाकायदा हाथ डालती है। पुलिस आ तो जाएगी, yeah. हाँ, तो हम वाक़ई इस लिहाज़ से ब्लेस्ड हैं कि हम हमारे यहाँ एक्चुअली हमारे यहाँ भी चीज़ें हैं कि अगर आप ये बोलें तो आप थोड़ा मुश्किल में पड़ जाते हैं। अब सूरत-ए-हाल ऐसी है, Mm, लेकिन फिर भी इट्स वे बेटर देन yeah, ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया और अमेरिकन वहाँ तो कॉलोनीज़। है ही तो नहीं, yeah, हाँ, है ही नहीं। yeah. सही है। So, so the idea is, and then we need to create a, way for others to communicate with हाँ, us. बिल्कुल। इस इंट्रोडक्शन के Ideas, बाद मैं कहूँगा कि एक छोटा-सा इसके अंदर अगर जैसे लिंक हो या कुछ हो yeah. जिससे हमसे लोग कॉन्टैक्ट कर सकें ताकि हम उसकी लिस्ट बना लें कि जो लोग Uh, भी इस पे आना चाहते हैं, उसके बाद so, हम देखें। हाँ, so then you go ahead and say what, how do they, should they contact you if they want हाँ, to? Go हाँ। ahead, tell. हाँ, तो इसी मेरा में, तो हाँ, मेरा सबसे अच्छा कॉन्टैक्ट जो है वो ईमेल पे मेरा फर्स्ट इनिशियल यू और लास्ट नेम मुराद, हम्म, यूमुराद @me.com। इसके ऊपर मुझसे अगर कॉन्टैक्ट कर दें तो फिर हम उनका नाम लिस्ट पे शामिल करके और फिर yeah, और कुछ को मैं जो जानता हूँ मैं खुद भी कॉन्टैक्ट करूँगा। uh, लेकिन ये कि दिस विल बी द बेस्ट वे टू uh, अ, मुराद जो है, दैट अक्सर अक्सर दफा लोग जो है डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, सो लिखते यू हैं। हाँ, मेरा एम यू, या MURAD। हाँ। सो इट बी तो ऑल, UMURAD @ME maryelizabeth.com। और ये सारा लोअर केस है।
ये सारा लोअर केस है। या और जो है मेरी जो मेन ईमेल है वो jahania@comcast.net, JAHANIA, jahania@comcast.net। जब और ये चलेगा तो हो सकता है मैं डिफरेंट यूज करूँ ईमेल जस्ट फॉर द हुँ, पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑन दिस। हुँ, सही। और बाकी व्हाट्सएप पे है, अगर आपने अपना फ़ोन नंबर शेयर करना है, इट्स अप टू यू। हुँ। व्हाट्सएप। हाँ, जो व्हाट्सऐप के ऊपर मेरा फ़ोन नंबर जो है वो 606-359-2863 है। हुँ, हुँ। पाकिस्तान के दोस्तों के लिए अगेन 606-359-2863। For तो those who मैं are not in the US, you can हाँ, say, US country code is 01. 01 हाँ, बिल्कुल। उसके बाद 606 is एरिया कोड, और फिर जो 7 डिजिट्स हैं वो आपका सेल फोन और नंबर। व्हाट्सऐप पे ये भी आसानी होती है कि जब आप ऐड करते हैं किसी को तो आपसे वो कंट्री पूछता है, तो खुद ब Yeah, खुद वो पहला कोड उसके अंदर वो ऐड ही कर ये देता है। ऐड कर सकता हाँ, है। और उसके बाद फिर आप नंबर डाल दें तो या सो मेरे जो है वो व्हाट्सएप एरिया कोड 248, ये मिशिगन का अभी तक चल रहा है, 9746197। एंड एज थिंग्स गो आई माइट ऐड डिफरेंट नंबर्स एंड व्हाट नॉट, खैर वो बिल्कुल। करेंगे। सही है। और कोई uh, और मेरा ख़्याल है हम सच्ची बात के इस इंट्रो के साथ जो है, इस hmm, पहले प्रोग्राम को इतना ना करें लंबा कि yeah, मतलब हो जाए, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। yeah, we're right at 26 minutes। और ठीक? फाइनल जो है मेरी वो मोटिवेशन हुई कि एक दोस्त है मिशिगन में, हाँ, वो हमारी उम्र के हैं, इंजीनियर। वो सारे इकट्ठे रिटायर हुए पिछले 4-5 महीने पहले। तो उसने मुझे टेक्स्ट किया कि भाई हम चारों ने एक पॉडकास्ट शुरू किया है, उसका नाम है बूमर्स ऑन द एज। अच्छा। सो वो तो खैर वही इकट्ठे ही रहते हैं, क्लोज, और अपने हुँ, बचपन के स्कूल से दोस्त हैं। तो वो इकट्ठे होते हैं वीकेंड पे, पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हैं, और इसी तरह का पहले से आइडिया होता है कि भाई आज हम इस चीज़ के बारे में करें। तो उनकी भी पॉडकास्ट है। खैर वो बज़ स्प्राउट पे है, वो ऑडियो है, जब मैंने लास्ट चेक किया था, उसके बाद तो चेक हुँ, नहीं किया। So I think the idea is that we can always put the audio from this on Buzzsprout, हुँ, just as an audio, but हुँ, also to have, I think. सही। चलो तो सही है। फिर हम दोनों ही इसको शेयर कर लेंगे अपने-अपने पेजेज़ पे और Yeah, उसके बाद फिर यहाँ से yeah, स्टोरी का आगाज़ करते हैं। yeah. Okay. ठीक है, चलो अपना ख़्याल Thanks, रखें। Amar. Okay. ओके, खुदा Bye. हाफ़िज़। Bye.